Opera, and Suvit. We are also thankful to our silver sponsor, FairValuation.com, Pigment Global Solutions Private Limited, and We Care Freedom Wealth Private Limited. We are now heading to the third technical session on vibe coding. Let's create an app live. May I now request CA Ankit Marfatia, the Vice Chairman of Bharuch branch, to escort our speakers for the session, CA Tapas Ruparelia and CA Shashank Sabu, Hackathon finalist for the season 4, on the stage. Now I request C. Ankit Marfatia to welcome our speakers. Thank you. Now I request our speakers to please address the session. Hello. हाँ जी, हाँ बोलो. Check. ठीक है, ओके. हेलो. हेलो. कभी? अच्छा. नहीं, अभी आगे से ध्यान रखूंगा बस. Gratitude which we have towards our technological partner from Parul University. I would now call upon CA Jigar Shah to felicitate the team from Parul University. The song which was played, that was made by an AI. Thank you. Good afternoon, everyone. What about the energy after the lunch? I believe we have a lot of energy now, because till the last session that we had, and also the previous sessions that you had yesterday, you had learned about a bit of coding. You learned a bit of LLMs, and you learned how to integrate them. But what if we, I and Tapas, help you develop a tool wherein AI does the coding for you, and everything is integrated into one place. So we call it, because there should be a vibe when we are coding, and hence the term vibe coding. So what ultimately we are going to do here is, we have बहुत कुछ सीख लिया, prompt कैसे डालते हैं,
नोटबुक एलएम कैसे यूज़ कर रहे हैं, हैकाथॉन में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने सब कुछ बना दिया, बट बैकग्राउंड में क्या होता है, ऐप कैसे बनता है, शुड वी प्रिपेयर एन ऐप लाइव? लेट्स गो अहेड. So I'll be providing you a brief of how the app would be started. You can directly try the app in your laptops whenever you want to, and Tapas on the other hand would develop the app live in front of everybody. So let me just begin with the basics so that we can understand how this is going on. So what is happening right now, I guess everybody can relate that whenever we think of creating a code right now, we go to say ChatGPT or Claude or Gemini, right? पूरी participation होनी चाहिए तभी आपको अच्छा लगेगा करके. Okay? So what happens generally, we go to Gemini, we go to Claude, ChatGPT, we type in the prompt that we want an X and X software, or we want to develop such a tool. And what do we do from that? We copy it. Either it runs via an HTML, or we have tools like VS Code, जहां पे आप कोड को कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो और उसे यूज करते हो, राइट? What if I tell you that we have an integrated development environment? As the word suggests, integrated. मतलब हमने एक environment create कर दिया where you can see what is going on, and there is also an AI which is running. So you can write like a natural language कि मुझे ये चाहिए, I want this to be created, and it automatically converts that live in front of you, and you can see the app there and then. That would be great, right? That is known as an IDE. Are you guys excited? Awaj? People in the background? Piche? Okay. My voice is audible? Alright, great. So we have different kinds of IDE for vibe coding. We have, say, Cursor, जो मैं अभी आपको demonstrate करके दिखाऊंगा. We have Cursor. Tapas ji will show you another software. We have Lovable. I believe किसी ने सुना होगा Lovable, right? So all these are platforms through which we can do vibe coding. So when did it come up? So it was developed by a AI researcher Andrej Karpathy, who developed in early 2025. मतलब एकदम latest concept है. This is like an integrated program for vibe coding. Now, I talked about Cursor in front of you, right? We'll go to the app directly. सबसे पहले what you have to do is, this is, okay, there's an internet, I guess, okay. This is the Cursor's website. If you are using Windows or you using Linux या फिर Mac, you can download the Cursor app, right? Download it. The first question that comes in, is it free? To start off, it is free. But if you are thinking that you want to develop codes, then you can download it. Okay? Now, this is the Cursor interface. This is how the app would look like. जब आप download कर लोगे, this is how the app would look like. ठीक है? The first thing that we have to do when we start a Cursor app is that we will create a folder. से मैंने एक folder बनाया आपके सामने, demo. ठीक है? Whatever actions happen will happen inside this demo folder. I'll click on open projects. I hope that you remember that we created a folder known as demo. मैं इसमें click कर दूंगा. Okay? Fair enough? Okay till here? Now, what if I want to build a GST reconciliation tool? And trust me, I have used this app to develop the entire GST reconciliation tool, जो कि आपको मैं last में जाके दिखाऊंगा. Right? So generally what do we do? The problem is that we do not give the proper prompt to the LLM or say Cursor. This I believe everybody has said. But the problem is कि मुझे ये पता है that I am not able to give proper prompt. But then how do I give the proper prompt? I'll sound a little traditional in the world of AI, but I will always suggest that we all are domain experts in our issue, right? Some might be GST experts, some might be TDS experts, some might be income tax experts. We just have to structure the data. For example, if I have in my mind that I want to create a GST reconciliation tool, here's the complete breakdown. First, how do I want the GST reconciliation tool to look like? First. Second, you have heard about libraries in yesterday's thread. So which library you should use? Now people might be asking, कि sir, अगर AI आ गया,
तो हमें तो कोडिंग लैंग्वेज सीखना ही नहीं है, राइट? आई विल बेग दैट, ये मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा इसके साथ में, बिकॉज आई थिंक दैट यू शुड नो, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड बी अ हार्ड कोड कोडर हियर, बट यू शुड नो एटलीस्ट व्हाट इज गोइंग ऑन. एग्जाम्पल, इफ somebody says Streamlit, for example, I'll show you a Streamlit library. Sir might suggest me a better library than Streamlit because Streamlit में एक limitation है that it will not be able to handle a very big data. Yes, it might handle a data say around 50,000 rows या 40,000 rows, but those bigger transactions which have lakhs of rows, that might be an issue. So you must be knowing what kind of a library it is, and this is basic कि आप बस ChatGPT को पूछ लीजिए, right? So one option, आप बताइएगा मुझे क्या करना चाहिए. I directly go to cursor. You can see in the right hand side new chat लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को सबको. आवाज कम हो गया, फिर आगे नहीं बढ़ूंगा. Great. So आप देखिए ये कर्सर ऐप है. You can see a toggle AI दिख रहा है आपको, toggle AI pen. This is like an LLM आपके लिए, which is running inside. ठीक है? It is a combination of VS Code and say a LLM. आप यहाँ पे इस न्यू चैट में देख रहे हो, you can write whatever you want to build. But आप बोलोगे ये how is it running? There should be an LLM, right? See, this is the magic of the tool that is used. यहाँ देखो आपने लिखा ऑटो लिखा हुआ दिख रहा है आपको. मैंने यहाँ पे ऑटो ऑफ किया तो आपको देखो यहाँ पे सारे के सारे टूल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. You can choose any of the tools to whoever understands your feelings better. जो आपकी बातों को एक्सप्रेस कर दे वो टूल आप सिलेक्ट कर लो. बट देखिएगा कभी कभी क्या है, पसंद की चीजें जो होती है वो थोड़ी खर्चीली होती है, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट द LLM. प्लीज डोंट टेक इट एनीवेयर एल्स. सो इफ आई चूज एनी ऑफ द LLMs हियर आई कैन, बट द प्रॉब्लम इज टोकन्स लगता है. तो जैसे एग्जांपल, अगर आपको प्यार हो चुका है सोनेट से, ठीक है, क्लॉड, then in that case it is a little expensive. For example, if I select sonnet and I write anything, it will say you have to pay more amount. So the best thing, if you are starting off, put it into auto, because वो क्या करता है, उस टोकन को मैनेज कर देता है based on your requirement, right? तो आप मुझे बताइए मैं कैसे बनाऊं. Should I just write prepare a GST reconciliation tool and keep it? Will it cater your satisfaction? फिर वापस आवाज कम. No, right? So now I don't know how to structure it. Possible? I'm starting off. I don't know how to structure it. Second thing, whenever you use any of the IDE, यहाँ पे आप जाइए to say, आप ChatGPT यूज कर लो, क्लॉड जो आपको पसंद है, जिसकी भी आपने प्लस लेके रखी है, अब तो फ्री है सारे. आप जाइए वहां बोल दीजिए जैसे एकदम सिंपल, I want to create a GST reconciliation tool in Cursor. Develop me a plan for the same that I can mention in Cursor to build. ठीक है? Now this can vary a bit because you know that ChatGPT remembers your conversations, right? So if you have talked about GST previously, it will understand. That is why it is a better tool. If you think that आपने पहले काम किया, it will improve over time, right? It gives you a proper structure. See, तो आप start इससे कर सकते हो. ये पूरी तरीके से आपको बता देगा कि क्या करना चाहिए. इतना कुछ इसने मुझे बोला है, देखिए. So the point is, अगर आप जाके यही एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखोगे ChatGPT में, दैट आई वांट टू प्रिपेयर अ टूल, आपको आई डोंट थिंक सो इससे क्लोज भी कुछ मिलेगा. द पॉइंट इज बिकॉज लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन वुड हैव ऑलरेडी हैपेंड बाय शशांक विद दी ChatGPT. उसको पता है वो कैसे स्ट्रक्चरली काम करता है, उसको क्या क्या एक ऐप में डिटेल में चाहिए होगा, विच इज वेयर दिस डिटेल प्रॉम्प्ट हैज कम. ये जो पहला प्रॉम्प्ट था वो भी शायद और डिटेल्ड होना चाहिए था. इज व्हाट इज ट्राइंग टू. करेक्ट. सो यू विल गेट अ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव, बट यू विल गेट अ डायरेक्शन, राइट? मेक सेंस? But the magic will only happen. You want to see magic, right? Magic will only happen when you give your personal touch. सबसे पहले that you have to do is to think. आपको एक GST reconciliation tool चाहिए. You have a lot of libraries. Which library you want to choose? Say we build on Streamlit because everybody has heard about Streamlit, right? ठीक है? It is a library of Python. So we will use Streamlit, right? And then I have just written down a prompt. I'll just show you. You can copy it if you want to, but मैं चाहूंगा कि आप लोग करो, ठीक है? ये देखिए, दिख रहा है आपको? देखिए मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आप जाके चेक कर सकते हो. You are specialized GST reconciliation agent. Your role is to help build, debug, optimize and extend a Streamlit. देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया. If I don't know anything about it, मैं यहाँ छोड़ दूंगा और वो अपने हिसाब से ऑप्शन पूछेगा which library you want to choose, right? Python tool that performs books versus to be reconciliation. ठीक है?
with high level of accuracy and compliance diligence. इसमें क्या होना चाहिए? It should be able to handle Excel, CSV, automate करना पड़ेगा, reconcile करना पड़ेगा, because आपको basis बताना पड़ेगा ना. Say we have a data in books, we have a data in 2B. How do you compare? हमने एक combination बना दिया GSTIN plus invoice number, right? And we make the tools compare. ठीक है? मैंने इसको देखिए, I simply copy this. मैंने इसको कॉपी किया, मैंने सिंपली इसको कॉपी किया एंड आपके सामने आई एम पुटिंग इट इन द डेमो सेक्शन. मैं एंटर कर दूंगा. ऑब्वियसली वी हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल, बट मैं दिखाता हूं कि कैसे होगा. एंड ट्रस्ट मी, आई हैव डन द एग्जैक्ट सेम थिंग जस्ट अ फ्यू लाइक 30-40 मिनट्स अगो एंड आई विल शो व्हाट इट हैज डेवलप्ड. राइट, सी नाउ इट इज एक्सप्लोरिंग कि कौन सा कोड बेस आना चाहिए, वो ढूंढ रहा है. बिकॉज मैंने कहा कि आप ये फोल्डर बनाइए. से आई हैव अ रीडमी फोल्डर, I have a tools folder. तो देखिए यहाँ पे चेकलिस्ट बन गया. देखिए आई एम डूइंग नथिंग, आई एम जस्ट वाइबिंग एंड इट क्रिएटिंग. ठीक है, सो नाउ इट इज क्रिएटेड ऑल द चेकलिस्ट. यू वांट टू मॉडिफाई एनीथिंग, यू कैन डू इट. ठीक है, दिस वे इट विल कोड. विल कम बैक. नाउ आई जस्ट शो यू. देखिए एग्जैक्ट मैं दिखा रहा हूं आपको. देखिए एकदम सेम मैंने लिखा है यहाँ पे. देख रहे हैं आप लोग, एवरीथिंग सेम. क्रिएटेड द चेकलिस्ट, एवरीथिंग डन. देखिए एवरीथिंग डन, सब कुछ यहाँ आ गया है. ऑल द कोड्स आर हियर. यू फील that you want to open this. आप जो मेन फाइल है app.py, उसमें क्लिक करिए, go to integrated terminal. वहां पे आप streamlit run app.py. या फिर if you don't remember this, no worries, just tell them कि आप मेरे लिए bat फाइल क्रिएट कर दो. bat like is the clickable फाइल होता है ना. You can just tell bat file, it will open it. This is the exact reconciliation tool which was developed because of it. Will it have errors? It might have errors. It might not give you the desired results, right? Since you have cursor for the savior, this happened with me also. If you can just check, मैं आपको conversation दिखाता हूँ. मैंने इनको बोला कि आप ऐसे बनाओ, and then it gave me a result. बहुत मेहनत की इसने. Then it gave me a final result. मैं आपको सजेस्ट करूंगा, if you are using cursor ना, आप प्लीज रीड करेगा what it is trying to tell you. ठीक है, आप Ctrl Shift T करके you can take out a summary also as what cursor has done. And basically उसने सारे देखो डिपेंडेंसीज कर दिए. मैंने उसको क्या बताया, देखिए फोटो खींच के मैंने क्या बताया, मैंने बोला कि ये आपके एरर्स आ रहे हैं. देखिए इसके ना नीचे में लोडिंग नहीं हो रही है. मैंने सिंपली स्क्रीनशॉट लिया एंड डाल दिया. यू वांट टू एक्सप्लेन. एग्जांपल, सर के पास पे अलग से कस्टम CSV फाइल है सर. It is not the regular 2B file. So you can link the CSV file saying that, see, this is the file, I will put it as input. You try to analyze the file and give it to me. So it will auto adjust everything. Still you might have errors. या फिर what has happened कि after this error you find that this has started hallucinating and giving me an incorrect result. In that case also, there's a beautiful feature which is in cursor, जो कि आपको Gemini में शायद नहीं मिलेगा. इसकी you can fall back to the area. देखिए आपने इसको क्लिक किया ना यहाँ पे, तो you have an option you can also start with the checkpoint. So in case the results are not as per the desired outcome, you can have the option to come back again. And वो आपको exact उस checkpoint पे लेकर चला जाएगा and will help you to develop the same. Now this was the tool which we just developed, and I will show you the tool that I had developed using the cursor tool. This was the GST reconciliation tool which we had developed, which has all the reconciliations done: purchase, sales, eBay, composite. I'll just show you one of the examples. मैं purchase में गया. I select the purchase book. I hope कि ये ले ले. I select on yearly. And आप देख पा रहे हो 494 transactions, 88 mismatches, everything properly dashboard में reconciliation summary along with all the mismatches, ITC by category, arithmetically that it is correct, top 5 vendor जिसे मुझे follow up करना है, 3B का टेबल मैं कैसे डिजाइन करूंगा, वेंडर का फाइलिंग डिसिप्लिन कैसे है बेस्ड ऑन द GSTR 1 फाइलिंग डेट्स, एवरीथिंग फेच्ड. उसके बाद में मैंने एनालिटिक्स रिपोर्ट बनाया जिससे ये समझ पा रहा है कि हाउ मच ऑफ द ITC इज बीइंग स्टक. दिस इज ऑल एड इन. आप बनाए पहले एक बेस, देन यू जस्ट ऐड इन कि मुझे ये भी चाहिए. कर्सर प्लीज मेक दिस फॉर मी. You just simply add it and it will give it to you. You might have errors, no issues. You can either debug
और go back to the checkpoint. Matched कौन से हो गए, unmatched कौन से हैं, and what are the categories of unmatched. And the good thing is कि मैंने एक logic डाल दिया कि whichever you find words like motor vehicle वगैरह उसको आप ineligible में डाल दो, ये अपने आप वहाँ पे डाल देगा. And you also have an IMS dashboard. So this is completely being built using Cursor. That is the power that it gives you when you start off with vibe coding. Did you like it? Yes. आवाज अभी भी कम है. Yeah. Okay. So over the mic to Mr. Tapas, who will show you another IDE tool which will be more fascinating. Thank you. Oh, काफी जल्दी. Thank you. Thank you so much. Just keep it. I was actually thinking to do some background work by the time Shashank finishes, but I thought, but I got the chance little earlier. तो क्या करेंगे, जो शशांक ने दिखाया था वैसा ही करते हैं, but we'll build the app live. ये जो there were two options, right? वो VS Code, Streamlit, वो सब थोड़े hyper technical शब्द थे. कल मुझे भी आप देखोगे तो hackathon में सवाल पूछा गया था, where is your database being hosted, right? So when all these apps are being built, there are three important components of an app. राइट, द फर्स्ट इज द फ्रंट एंड जो हमको दिखता है. तो जो शशांक ने दिखाया था जो स्ट्रीमलिट है, दैट इज योर फ्रंट एंड, जहाँ पे आप जाके इंटरैक्ट करते हो. वो पीछे जो आईडी में हो रहा था, राइट, दैट इज समथिंग दैट वी डोंट अंडरस्टैंड. वहाँ पे कोड लिखा है, बट एज अ यूजर आई जस्ट वांट टू इंटरैक्ट विद द यूआई एलिमेंट्स. राइट, हम लोग विंडोज पे क्लिक करते हैं तो क्या हमको पता है पीछे कितना कमांड एग्जीक्यूट होता है? वी डोंट नो, बिकॉज व्हाट डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? 0 and 1. That's only what computer understands. So even if you click a folder button, ultimately what goes into the computer at the end, last mile जो होता है, that is 0 and 1, right? So one is front end where we normally interact, then there is back end जहाँ पे ये सारे code execute होते हैं, and actually it goes to the computer and whatever relevant output is supposed to come, it comes out. And then the third and the most important part for which I was also being asked the question is what is the database? ये जितने भी आउटपुट्स होते हैं वो जाके कहीं पे तो स्टोर होते हैं. हर चीज़ मैं जाके एक्सेल में जाके नहीं स्टोर कर सकता, राइट? इफ आई वांट टू कीप इंटरैक्टिंग विथ माय सॉफ्टवेयर, एंड आई अंडरस्टैंड दैट मेनी ऑफ अस वुड बी यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर समवेयर, राइट? जीएसटी रिकंसिलिएशन के लिए या इनकम टैक्स रिटर्न्स एक्सेट्रा. हम लोग जब सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते हैं हमारा पूरा क्लाइंट का लिस्ट निकलता है, उसमें पीछे क्या डिस्कशंस हुए हैं, व्हाट आर द रिटर्न्स दैट वी हैव फाइल्ड, एवरीथिंग यू कैन सी देयर, राइट? ऑन इनकम टैक्स वेबसाइट ऑल्सो व्हेन यू लॉग इन थ्रू योर पैन and password, you can only see your income tax return. You cannot see my income tax return. So that's how an entire database is constituted. So आप जो income tax का website देखते हो, that is your front end. आप जब उसके साथ interact करते हो, पीछे जो code run होता है, that is the back end. और जब आप उसके वहाँ पे relevant actions पे click करते हो और जब PDF आपके यहाँ पे download होता है, you are able to see those tools that is coming out from the database. अब ये तीनों कंपोनेंट्स बिल्ड करना इज समथिंग विच ओनली अ डेवलपर वुड नो. हम कितना भी एआई सीख ले, अल्टीमेटली व्हेन इट कम्स टू ट्राइंग टू व्हेन इट रियली कम्स टू डिप्लॉय एन ऐप, जहाँ पे मैं कहीं पे कोई सर्वर पे जाके एक ऐप डिप्लॉय करूँगा, ये तीनों चीज़ों को इंटीग्रेट करके बनाने के लिए आई वुड नीड अ डेवलपर. सो आई हैव विद मी अ लाइव डेवलपर हियर जिसके साथ हम लोग बात करके बनाएंगे. What Shashank had done is it was a very detailed prompt. I was trying to edit it, but anyways, I have gone to Claude. जो exact शशांक का prompt था वो मैंने वही उनसे लिया है. He had WhatsApped this prompt to me. What I have told Claude is that I want to build an app and I have made a prompt below, but I want to keep the app limited for GSTR 2B versus the purchase register. Should say reconciliation, right? And I have said that please नीचे जो भी prompt है खुद पढ़ लो और उसमें से relevant features लेके please help me build the prompt on vibe coding apps such as Emergent और Replit. ठीक है, ये दोनों ऐप में मैं यही prompt जाके पेस्ट करूँगा and we'll see which app prepares what. And it will build a front end, a back end as well as the database. तीनों चीज़ें बनेगी. वो prompt शशांक जी का मैंने डाल दिया है. I'll just change this to
Sonnet opposes something जो ज़्यादा डिटेल में जाता है. I'll have to. Anyways, I think I've lost my prompt. No worries. कुछ चला गया तो वापस फटाफट आ जाएगा. Not an issue. I think I have the prompt available. Yep. Sure. मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं उसको टैग दे रहा हूँ so that उसको पता चलेगा कि ये prompt यहाँ से शुरू हो रहा है. राइट, सिंपल HTML हमको जब कंप्यूटर लिया था स्कूल में या कॉलेज में तब ये दिखाते थे. राइट, व्हेन अ सिंपल वर्ड इज यूज्ड इट स्टार्ट्स लाइक दिस एंड व्हेन यू ऐड अ बैकस्लैश सॉरी अ फॉरवर्ड स्लैश इट एंड्स इट. I'll again write my prompt. Test. Please help me build this app. The prompt that I have created for us is mentioned below, but I want to keep my app limited to GSTR2B versus purchase register reconciliation. Please ignore the tech related points mentioned and use your own thinking and suggest the tech stack. ठीक है, टाइप करने में ज़्यादा टाइम जा रहा था. आई एम यूजिंग अनदर टूल विच टेक्स व्हाट आई डिक्टेट एंड इट टेक्स माय सजेशन. इवन इफ आई मेक ग्रामेटिकल एरर्स और एनीथिंग इट टेक्स इट बैक ब्यूटिफुली. And I enter it. So it is going to come out with a prompt. Till that time I'll just ensure that I have my, yes, this is ready. And this is also ready. ठीक है, this is the app replit.com. I have just very quickly created using some of my old email ID available. I have created a fresh app so that it is not it does not have the background that I have. Yeah, आप लोग भी जब नया कुछ अगर शुरू करोगे तो एकदम blank slate से अगर शुरू करना है तो I have created a temporary account this morning for this idea. And yes, Emergent also the new login is ready. And yes, it has come back. I forgot one thing. I do not want to use Streamlit. The app is going to it is going to be hosted online on a server. Please suggest the tech stack accordingly. अभी उसने सब चेंज किया. एक्चुअली ऑनलाइन में जब जैसे भी यूज़ होता है इट हैज़ सजेस्टेड ऑल दी ऑप्शंस एंड इट हैज़ अगेन गिवन 2 ऑप्शंस. या तो जावास्क्रिप्ट से हो सकता है या तो फुल स्टैक पाइथन ऐप हो सकता है. आई एम नॉट रियली श्योर. अपने ऑप्शन 1 जो है विल गो इनटू एमर्जेंट एंड ऑप्शन 2 विल गो टू द अदर ऐप. लेट्स डू इट. आई विल पेस्ट द फर्स्ट ऑप्शन इनटू give me detailed prompts for both. First give me the prompt number 1 which I will be pasting into Emergent, and then prompt number 2 for option 2 which I will be pasting into Replit. अभी आप देखेंगे तो द वे इट हैज क्रिएटेड अ प्रॉम्प्ट इज समथिंग दैट एक्चुअली वुड गो इनटू एन ऐप जो मशीन को समझ में आएगा. राइट, द फॉर्मेट दैट यू सी राइट नाउ अगर मैं कॉपी करके कोई बाहर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या कहीं पे पेस्ट करूंगा तो आई विल सी अ लॉट ऑफ स्टार्स एंड हैशेस. इट इज कॉल्ड अ मार्क डाउन लैंग्वेज जो कंप्यूटर को एक्चुअली समझ में आता है. राइट, माई प्रॉम्प्ट नंबर 1 इज स्टिल गोइंग ऑन. इतना डिटेल प्रॉम्प्ट होना जरूरी है. Right, there is a video we would have seen on Instagram or YouTube somewhere जहाँ पे one father
tells his children to give him a step-by-step process of how to make a peanut butter sandwich. उसमें जो बच्चे होते हैं वो जाके फादर को जाके बोलता है, एक लिख के आते हैं, टेक द पीनट बटर जार, टेक अ ब्रेड, अप्लाई द पीनट बटर ऑन टू द ब्रेड एंड देन ईट इट. सो ही टेक्स अ पैकेट ऑफ ब्रेड, उसके ऊपर वो बॉटल रख देता है पीनट बटर का और बोल रहा है कि आई एम नॉट एबल टू ईट इट, है ना. दैट इज हाउ अ डिटेल्ड प्रॉम्प्ट शुड बी. तो ये एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट बना है. पहला प्रॉम्प्ट वाज फॉर इमरजेंट. सो आई विल कम हियर, आई विल नाउ जस्ट कॉपी इट एंड अभी ये थोड़ा इनसे भी मेहनत करवाते हैं. क्लॉड का मेहनत खत्म हो गया. आई विल कम हियर, आई विल पेस्ट इट. जब तक ये कुछ करता है तब तक सेकेंड प्रॉम्प्ट में जाके विल गो इनटू रेपलेट एंड ट्राई टू बिल्ड इट. आई विल कॉपी दिस हियर and then I will I think it has a limitation of the prompt detail that I can give. अच्छा नहीं हो गया है और probably while I was copying नहीं हो रहा था. Let's try it again. ठीक है. हाँ नहीं हो गया. चलो. It is because it's a detailed one. I will say that I have attached a detailed prompt/instructions for you to build an app. Please study it and start building the app. Ask me if any questions you have. अब देखिए, आई सेड आस्क मी इफ एनी क्वेश्चंस यू हैव, बट इट हैज चेंज आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. उसने मेरा ग्रामर करेक्ट कर दिया. लेट्स सी व्हाट आवर फ्रेंड इमरजेंट हैज डन. ऑफ कोर्स बिकॉज आई एम यूजिंग अ फ्री वन, इट इज आस्किंग मी टू अपग्रेड. या इट हैज आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस, सो आई विल वेरी क्विकली आंसर. I am okay with MongoDB, go ahead. So it is asking me some questions and I am not really sure कि किस में से क्या ठीक होगा. So I am just saying please go ahead with whatever you suggest, वरना मुझे चाहिए होगा वैसा ऐप शायद नहीं बनेगा. Number 2, design preferences, any specific design, professional. I have sample data, I am attaching it for your reference. I have already prepared a mock GSTR2B JSON and purchase register JSON. That also I have given to Google Gemini कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है जब मेरा GSTR2B आता है. मैंने सिर्फ हेडर्स पेस्ट किए और मैंने जो GST नंबर्स होते हैं, इनवॉइस नंबर्स होते हैं, उसके सैम्पल्स उसको दिए हैं. And I've created a sample GSTR2B so that my actual client data doesn't go to these companies and there's no confidentiality issue, right? So I'm attaching these two files. तब तक Replit में कुछ पूछा है तो पूछ ले, देख लेते हैं. नहीं वो चल रहा है. Emergent might stop because I'm using a totally free version and it is giving limited number of credits to me. Design preference हो गया, sample data हो गया, deployment target, when do you plan? Where do you plan? I will decide it later. File storage, should I use local file system? We can work with local usage as of now. Same, Replit is also asking me some questions. Number 1, I have attached the sample data for you. Number 2, yes, users should be allowed to adjust the tolerance limit, give percentage and absolute values, both options. Number 3, it is going to be for a single user as of now. अभी ये जो जितना शशांक ने दिखाया था, इट हैज स्टार्टेड रनिंग द कोड्स. उसके जितने भी लैंग्वेज है,
it is creating all those links, coding, हर एक चीज़ के लिए वो एक एजेंट डिप्लॉय करता है. सो राइट नाउ इट हैज़ डिप्लॉयड एन एजेंट कॉल्ड कोडिंग एजेंट, जो एजेंट रनिंग. सो कोडिंग हो गया रेडी. नाउ इट इज कॉल्ड अ डिज़ाइन एजेंट. यूआई बनेगा. एक टेक्नोलॉजी कंपनी कैसे काम करती है? देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स देयर इन द टेक्नोलॉजी कंपनी, राइट? देयर इज समथिंग कॉल्ड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट विच डज द हार्डकोर कोडिंग. देन देयर इज अ यूआई डिपार्टमेंट जो डिसाइड करता है कि आपका जो वेब का पेज है वो कैसा दिखेगा. देन देयर इज अ क्यूए टीम हु इंश्योर्स के सैम्पल डेटा जब मैं दूंगा तो सैम्पल डेटा से कैसे इंटरेक्ट होगा, कोई एज केसेस हैंडल हुए कि नहीं, ऐप ठीक से चल रहा है कि नहीं. देन देर वुड बी अ टेस्टिंग टीम. क्यूए तो हो गया. देन यूएटी टीम होता है जो एक्चुअली क्लाइंट को जनरली दिया जाता है, बट व्हेन इट्स एन इंटरनल ऐप बीइंग बिल्ट, द यूएटी टीम runs the entire testing. So there are different departments when it comes to a full-fledged technology company. These are all different agents that will be deployed into Emergent right now. अभी पहला एजेंट ने कोडिंग खत्म कर दिया है, अभी एक डिज़ाइन एजेंट रन कर रहा है. That design agent is doing its job. तब तक let's see what Replit is doing. Replit has given me a plan. I'll include the following: a dual file upload interface, interactive column mapping, reconciliation engine, fuzzy match, adjustable tolerance settings, categorized results. Yeah. इसे ऐप बनाओगे ना तो बहुत टाइम लगेगा. डिज़ाइन से शुरू करते हैं, बट दैट ऑप्शन इज समहाउ नॉट अवेलेबल. आई थिंक आई हैव सफिशिएंट टाइम. सो विल इनको भी देते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इट डज बाय द टाइम दिस बिल्ड्स. एंड ये जो हमने स्ट्रीमलीट पे देखा था, जो शशांक वाज सेइंग अबाउट वीएस कोड, सो आई विल शो व्हाट आई हैड डन. In the meantime, I'll very quickly show what I had done, right? So similar to Shashank, we were in the same semi-final hackathon, and what he just showed, a little larger version of that is something that Shashank had shown during that semi-final. Or mera use case was taking care of a very small part of it, but then it was getting deep into the GST reconciliations. I wanted to ensure that when I upload a purchase register, चाहे वो Zoho से आया हो, चाहे वो टैली से आया हो, चाहे वो SAP से आया हो, या चाहे एक्सेल से ही कोई बना रहा हो, when my purchase register comes in, I have a couple of key columns. One is GSTN, one is the invoice number, then date, taxable value, CGST, SGST, IGST, and cess amount. These are the 8 columns which are necessary for me to perform a reconciliation. बाकी जितने भी कॉलम इधर उधर जो आते हैं मेरे को फर्क नहीं पड़ता है. अभी वो इनवॉइस नंबर लिखा है, वाउचर नंबर लिखा है, INV नंबर लिखा है, I'm not really sure, and all my customers give me the data separately. So I at that time gave a prompt. I discussed with Claude. Claude की एक खासियत है, जब आप एकदम लास्ट मोमेंट पे पहुंच जाते हो, जब आपका ऐप रेडी होना होता है, तो उसकी लिमिट्स खत्म हो जाती है, और फिर वो ऐसा बोलता है 4.5 घंटे के बाद आना. तो it is very difficult to have those conversations with Claude. If you want to have a longer conversation, Gemini is something which is really good, and in fact the Gemini 3.0, which is जो जियो हम सबको फ्री में दे रहा है 18 महीने, if you have not availed it, my suggestion is to avail it. If you don't have Jio, my suggestion is to buy a Jio card and then avail this offer, because the entire ecosystem that Google gives you right now is something really really amazing. तो जो शशांक ने आईडी दिखाया था कर्सर, similar to cursor there is something called एंटी ग्रेविटी बाय गूगल. इसमें भी सेम है, आप जाके इसमें प्रॉम्प्ट डालोगे, इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग द ऐप अलोंग विथ यू. और देयर इज समथिंग कॉल्ड गूगल्स AI स्टूडियो विथ जेमिनाई. यहाँ पे आप देखेंगे देयर इज समथिंग कॉल्ड एन AI स्टूडियो, एंड प्रोबेबली बिकॉज वी हैव टाइम आई एम गेटिंग अ बिट greedy. यस, ये प्रॉम्प्ट में जाके जरा गूगल AI स्टूडियो में भी डाल देता हूँ. अगर टाइम बचा तो विल डू दिस ऑल्सो एज अ बोनस. यप, तो ये गूगल AI स्टूडियो भी है विच इज़ फ्री एज ऑफ नाउ एंड इज वर्किंग ऑन Gemini 3 Pro. तो वो सारे जो ऑप्शन दिख रहे थे वो ऑप्शंस नहीं होंगे. देयर इज ओनली वन LLM दैट इट इज यूजिंग इन दी बैकग्राउंड. इट हैज स्टार्टेड बिल्डिंग इट. तब तक देख लेते हैं Replit क्या कर रहा है. Replit भी अपने काम में लगा है. Now why do we call it vibe coding? बस यही है vibe.
प्रॉम्प्ट दे दिया, वो अपने काम पे लगेगा. आई विल गो एंड अटेंड द क्लाइंट्स कॉल, आई विल कम बैक, आई विल सी कहाँ पे अटका है, कुछ सवाल है क्या, आई विल अगेन गिव एन आंसर. इट्स जस्ट लाइक योर एम्प्लॉय दैट इज वर्किंग फॉर यू. It comes back to you with questions, and when the questions are over, it again goes back and works. But supervision is necessary. But one really important thing to be noted. ये सारा जो है, if you want to build something, you want to understand, अगर if it's a very simple app, जैसे शशांक ने दिखाया था, running it on Streamlit and Python is the best option. अगर ऐसी full fledged apps बनानी है, बन तो जाती है when actually you want to run it in a production environment. When app becomes live, it is known as a production environment, right? तब प्रॉब्लम्स होते हैं. ये जो डेटाबेस है, जो रेपलेट मुझे पूछ रहा था, सिंगल यूज़र होगा या मल्टीपल यूज़र्स होगा, डेटाबेस कैसे एक्ट करेगा, वो डेटा वापस आएगा कि नहीं, बैक एंड ठीक से चलेगा कि नहीं. जब एरर्स आना शुरू होते हैं ना, और जब फिर उसको पूछना शुरू करते हैं ना, तब जाके क्रेडिट्स यूज़ होना शुरू होते हैं. तो अभी इमरजेंट में मेरे पास 15 क्रेडिट थे. अभी मेरे को 15 क्रेडिट्स में वो मुझे बेसिक, उसको MVP बोलते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, वो मुझे MVP बना के दे देगा. द मोमेंट देन आई गो बैक एंड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस एंड आई से कि ये इशू है, ये ठीक करो, फिर वो टेस्टिंग एजेंट लगाएगा, बहुत सारे एजेंट्स लगाएगा, और हर एक एजेंट 50-50 क्रेडिट खा जाएगा. एंड देन यू विल बी इन अ डीप साइकिल ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एक्सपेंडिंग मनी. सो द आइडिया इज, जैसे मैंने कल किया था, यू हैव टू डेवलप अ बेसिक प्रोडक्ट विच यू फील शुड बी रेडी, एंड देन इफ यू फील कि ये कहीं पे मुझे जाके काम करना है, देन you can take it to a developer and ask to host it for you, probably on your server. शायद बहुत सिंपल ऐप होगा, होस्टिंग का भी खर्चा जनरली 800 से 1000 रुपये होता है पर मंथ, बट स्टिल हैविंग अ डेवलपर टू मेंटेन दैट फॉर यू ऑन टू द सर्वर एंड इंश्योरिंग द ट्रबल शूटिंग इन अ रियल टाइम इज समथिंग दैट्स रियली नेसेसरी. अदरवाइज ये गेम लाइफ टाइम चलेगा. ठीक है, आगे देख लेते हैं कहीं पे कोई कुछ आगे बढ़ा. AI स्टूडियो इज ऑल्सो वर्किंग. तब तक मेरा जो ऐप था, let me try and run. So similar, VS Code जो शशांक भाई बोल रहे थे, this is what VS Code is. Any sort of technical file that you have, either it has a Python code, it is an HTML file, जो मैं Markdown बोल रहा था, Markdown instructions, जितनी भी फाइल्स होती है जो नॉर्मल कोई भी ऐप नहीं खोल पाती है, वो सारी VS Code में खुल जाएगी. VS Code has the capability to run the codes. तो जो Python का स्क्रिप्ट बनता है, there are two ways to run a script. एक तो कमांड प्रॉम्प्ट खोलना होता है, जो देख के मुझे तो बहुत डर लगता है ना. वो उसमें एकदम मैट्रिक्स मूवी में ब्लैक स्क्रीन आ जाता है, उसमें पहले तो कौन से फोल्डर में कैसे जाना है, कब चेंज डायरेक्टरी करना है और कब ड्राइव का नाम लिखना है, मुझे वही समझ में नहीं आता है. सो दैट इज समथिंग विच इज very difficult to use. The second option that you have is these are all different softwares available to run your code and VS Code is one of them. तो यहाँ पे very similar to what शशांक said, जो उसने कोड बोला था, सेम यहाँ पे मैंने कोड दिया है Streamlit run, और मेरा जो फाइल जहाँ पे पड़ा था app 0.4 पाई वो रेडी है, and then it has said that your Streamlit app is working now. तो मुझे अगर एक सिंपल ऐप चाहिए था जो मेरे सिस्टम में रन करता है, देन दिस इज समथिंग दैट इज रेडी, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैड शोन इन द सेमीफाइनल ऑफ द हैकाथॉन. आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला है देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉलम मैपिंग. व्हाट आई विल डू इज लेट मी ट्राई एंड रिफ्रेश इट. या सो द फर्स्ट स्टेप दैट आई गेट इज अपलोड योर डेटा. तो डेटा अपलोड करने के लिए दो ही चीज़ें, एक परचेज रजिस्टर है, आई विल गो टू ब्राउज फाइल्स, आई हैव माई मॉक परचेज रजिस्टर, I'll open it and I have given the options XLSX, XLS या XLS, तीन तरह की फाइल्स होंगी. एंड आप लोग अगर GSTR2B में जाओगे, when you go into the GST portal and you want to download the GSTR2B, there are two options that are available to you. JSON फाइल होता है और Excel फाइल होता है. When you are using an external tool to do something for you, a JSON file is much better. Excel is something जहाँ पे समझाना पड़ता है, और जब गवर्नमेंट के डेटाबेस से जब वो फाइल निकलती है, पहली 2 रोज में कुछ और लिखा होता है, फिर बाकी की 3 रोज मर्ज की होती है, फिर हेडर शुरू होते हैं, उसमें भी आधे हेडर्स रो नंबर 1 में होते हैं, आधे रोज रो नंबर 2 में होते हैं. सो JSON इज समथिंग दैट इज मोर स्ट्रक्चर्ड. Or CSV. CSV is also something that comes in. CSV is a replacement to Excel. अब यहाँ पे मेरा मैपिंग है, मेरे पास GSTN ऑफ सप्लायर, मेरा जो मैंने अपलोड किया है वो मोर और लेस इट इज सेम, एंड इट इज इंटेलिजेंटली ऑल्सो टेकिंग ऑल दी कॉलम्स प्रोबेबली फ्रॉम माई परचेज, और बिकॉज आई जनरेटेड द परचेज रजिस्टर फ्रॉम
the same conversation जहाँ पे मैंने टूल बनाया था वो इनवॉइस नंबर सेम आ रहा है, बट इफ लेट्स से let me refresh it, go to my sample data, I will go to mock PR और यहाँ पे मैं सिर्फ इसको I'll say GSTN, I'll say voucher number, I'll say date, यहाँ पे I'll say GST amount. I will again upload my PR. JSON और आप देखिए मेरे जो कॉलम नंबर्स मैंने कॉलम के हेडिंग्स मैंने चेंज किए थे, तो क्लाइंट कुछ भी दे रहा है उसने इंटेलिजेंटली पहले तो पकड़ लिया है दैट यू आर रेफरिंग टू सम GST IN ऑफ द सप्लायर, बट आई सी समथिंग कॉल्ड GSTN, वो मुझे मैच होता हुआ दिख रहा है तो मैं ले लूंगा. सिमिलरली यहाँ पे इनवॉइस नंबर में उसने गड़बड़ी कर दी है, नहीं समझा, तो मैं आई विल से यस यू इंस्टेड यू शुड हैव टेकन वाउचर नंबर, IGST अमाउंट, CGST, डन. नाउ आई run my reconciliation and by the time it is running the reco, of course it was very fast. Let me quickly check कहीं पे कुछ ready हुआ है कि नहीं. Click on that. Yeah, यहाँ पे Google AI Studio has made something for us. वो जो मेहनती लोग हैं दोनों वो अभी भी काम कर रहे हैं. ये देखिए इसने टूल रेडी कर दिया है, बट ये बोल रहा है भैया क्रेडिट्स आर ओवर, सो एमरजेंट इज आउट ऑफ क्रेडिट्स. लेट्स सी Replit कहाँ पे अटकता है, अदरवाइज विल get some credits and then come here. In the meantime, let's see. The only problem with my prompt at Google Gemini was that I had said that I need a Streamlit based app, right? So it is asking me to paste my CSVs. I will say, instead of asking me to paste CSVs, please give me an option to upload my files, and purchase register would be in Excel or CSV format and GSTR2B will be in Excel or JSON format. ठीक है, तब तक ये reconciliation report let's download. Let's directly only open it and have a look at what it has prepared. So my reconciliation is ready. If you see AI based reconciliation में यहाँ पे मैं match status में I will apply filters और exact match में I will go and select something called date mismatch and let's see क्या है. So invoice date, invoice number was INV 8898, INV 8898, GSTN भी match हो रहा है, date is 8th of July whereas here date was 13th of June, remaining everything else is matching, IGST amount etc. is matching. So this is my intelligent date matching. Exact match is something that we have actually seen. This is interesting, GSTN mismatch. आप देखोगे the GSTN as per my supplier is 02 and then the PAN number is starting whereas यहाँ पे 01 है. That is also it is intelligently matched. Similarly नीचे 20 है, यहाँ पे 19 है. जो 19-20 हो रहा है वो पकड़ लिया है. It has taken literally 19-20 का example. 19-20 का फर्क है. उसने बोल दिया 19-20 का ही फर्क है, मैच हो गया, ले लो क्रेडिट यार. नाउ दिस इज समथिंग दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर देखोगे तो परचेज रजिस्टर में मेरा जो बंदा है उसको आगे कुछ ना कुछ तो ऐड करने की आदत है, वो ABC लगा देता है. तो ABC 6119 इज द इनवॉइस, वेरस जब परचेज रजिस्टर जब एक्चुअली 2B होता है, या तो मेरा सप्लायर भी आलसी है, इनवॉइस जब बनाता है तब सीरीज में बनाता है ABC करके, बट जब 2B में अपलोड करता है तो समहाउ आगे के लेटर्स निकाल देता है. होता है, ये भी उसने मैच कर लिया है इंटेलिजेंटली. सिमिलरली स्पेशल कैरेक्टर्स के भी इशू होते हैं. इनवॉइस /612 यहाँ पे ऐसे ही है, INV 612. एक्सेल में V लुकअप, X लुकअप कुछ भी लगा लो, होगा मैच? नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा. डेट भी मिसमैच होगी कहीं और अमाउंट भी मिसमैच होगी, देन ऑल्सो इट माइट मैच. अब यहाँ जाके एक अमाउंट मिसमैच भी था. इफ यू सी अमाउंट मिसमैच में यहाँ पे 47592 whereas here it is 47588. तो ये अमाउंट्स की भी जितनी मिसमैच है मैच स्टेटस में, लेकिन अमाउंट मिसमैच बिकॉज आई हैड गिवन एन इंस्ट्रक्शन कि अगर टॉलरेंस के अंदर है 10 रुपये का टॉलरेंस है, देन ऑल्सो आई वांट इट इन माई मैच्ड, बट आई स्टिल वांट टू नो वेदर इट्स एन एग्जैक्ट मैच या अमाउंट कहीं पे
आगे पीछे है। डजंट स्टॉप हियर, मैच में जाके एक और देख लेते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड पेंडिंग। अभी ये होने के बाद मुझे और क्या चाहिए? मैचिंग तो पता चल गया, पीआर में कितने बच गए, तो दिस इज माय पीआर ओनली, दिस इज माय जीएसटीआर 2B ओनली। लास्ट में जीएसटीएनवाई समरी बना दिया है, तो मेरा मैचिंग तो हो रहा है। मैचिंग होने के बाद ऑल्सो आई वुड अंडरस्टैंड ये जो पार्टी था उसका परचेज में टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना था, आईजीएसटी अमाउंट कितना था, और सेम पार्टी का 2B में कितना था और आईजीएसटी में कितना था, और अगर कहीं पे डिफरेंस है तो कितना है। सो आई विल नो दैट दिस पर्टिकुलर पार्टी इज अपियरिंग एट बोथ द प्लेसेस, बट समहाउ एडवांस लॉजिक, डेट, अमाउंट, टॉलरेंस लिमिट सब कुछ डालने के बाद भी कुछ भी मैच नहीं हुआ है। तो दिस इज समथिंग वेल आई विल हैव टू गो एंड चेक मैन्युअली। हम लोग पिवट बना के भी करते हैं ना लास्ट में रिकंसिलिएशन, तो वो भी एक एडिशनली डाल दिया है, बिकॉज आई ऑल्सो यू नो डू जीएसटी कंप्लायंस ऑल्सो फॉर लॉट ऑफ क्लाइंट्स, एंड आई नो कि जब सब रिकंसिलिएशन हो गया फिर भी क्लाइंट फोन करके पूछता है ये पार्टी 2B में भी है, ये पार्टी पीआर में भी, आप तो सिर्फ पीआर ओनली बोल रहे हो। तो लोग बोलेंगे इनवॉइस नंबर नहीं मैच हो रहा है, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, आई एम नॉट गेटिंग एनी मैचिंग क्राइटेरिया, विच इज वाई आई एम आस्किंग दैट। सो रादर देन क्लाइंट कमिंग टू यू विल गिव दिस रिपोर्ट टू द क्लाइंट सेइंग दैट हमने ये भी मैच किया है, ये जो पार्टी है ना 2 जगह पे दिख रही है लेकिन उसका कुछ भी क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है, व्हाई डोंट यू गो एंड चेक योर परचेज रजिस्टर और चेक विथ योर सप्लायर कि क्या गड़बड़ है। सो दिस वाज समथिंग दैट वाज बिल्ट। नाउ लेट्स सी कहाँ पहुंचे हमारे एजेंट्स। ये भाई साहब तो हार मान ली है। Google has built something very fast. I am not sure whether it will take the data, क्योंकि ये हाँ Google AI Studio से हवा में बनाता है, वो फ्रंट एंड बना के देता है, बैक एंड है नहीं उसके पास, तो यहाँ पे कुछ होने नहीं वाला है। सो आइडियली व्हाट वन हैज टू डू इज क्लिक दिस डाउनलोड ऐप बटन। ये ऐप यहाँ पे डाउनलोड होगा। आई विल ओपन द फोल्डर वेर एवर इट हैज़ बीन डाउनलोडेड, आई विल एक्सट्रैक्ट इट। ये मेरा फोल्डर यहाँ पे रेडी हो गया है, एंड देन आई विल गो टू एंटी ग्रेविटी, और जो शशांक आपको दिखा रहे थे इन कर्सर, सेम थिंग, आई विल कम हियर एंड यहाँ पे आई विल हैव टू ओपन दिस फोल्डर। If HTML is your base, then you can use Google AI Studio because that's mostly front end only. अब मैं यहाँ पे जाके आई विल हैव टू गिव इट अ प्रॉम्प्ट। वो स्टडी कर रहे हैं, तब तक रेपलेट रेडी हो गया है। आई विल गो हेयर एंड आई विल सी द प्रीव्यू। रेपलेट अ फुल फ्लेजेड ऐप, डेटाबेस सब कुछ रेडी होगा। लेट्स ब्राउज इट एंड वही अपलोड करते हैं। मॉक जीएसटीआर 2B, परचेज फर्स्ट, सॉरी, हाँ, मॉक पीआर, नीचे मुझे प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि आप जब जो अपलोड किया है ना वो ऐसा कुछ दिखता है। देख लो डेटा बराबर है कि नहीं, कॉलम मैपिंग, हाँ। इनवॉइस वैल्यू इज समथिंग दैट आई रियली डोंट हैव एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। ऐसे ही बढ़ते हैं आगे, लेट्स सी। मैंने जेसॉन अपलोड किया ही नहीं, मैंने जेसॉन किया था। Probably it was expecting something else. यही तो मजा है वाइट कोडिंग का। It is written but probably उसके बैकएंड पे वो नहीं सपोर्ट कर रहे। That's where I am trying to upload an Excel file in GSTR 2B, but it is giving me an error. Probably वो नीचे CSV दिखा रहा है, but it might be taking a JSON file. Let's see. Invalid file format. I had also asked you to let me upload JSON for GSTR 2B. Can you quickly resolve this?
You are inside the front end of an app. Please have a look at the components and run this app for me. So सेम जो कर्सर पे दिखाया था शशांक ने वही किया. मैंने जाके कहीं पे पहले एक ऐप बेसिक ढांचा जो है वो बना लिया एंड देन आई केम बैक टू एंटी ग्रेविटी सो दैट आई कैन ट्रबल शूट इट माई सेल्फ. रेप्लिट में क्या होगा, मैं यहाँ पे जाके वेन एवर आई गिव अ कमांड, वो प्रॉब्लम डायग्नोस कर रहा है, उसको इशू दिख रहा है, वो कुछ तो जाके चेंज कर रहा है, बट आई एम नॉट रियली श्योर कि वो क्या चेंजेस कर रहा है बैकएंड में. व्हेन आई डू इट विथ एंटी ग्रेविटी इट ऑल्सो फंडामेंटली इट ऑपरेट्स ऑन द सेम फैशन, बट इट शोज मी लाइव एज टू वॉट इट हैज डन. और जो भी चेंजेस होता है वो साइड में वो करता है. इट गिव्स मी इट शोज मी, जैसे रेप्लिट में साइड में दिख रहा था वैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उसने क्या क्या चेंजेस किए हैं. एंड इफ इट इज मेकिंग अ मेजर चेंज इट ऑल्सो आस्क्स मी टू वेरीफाई कि मैंने क्या क्या चेंजेस किया है. एंड देन वंस आई एक्सेप्ट इट डज दैट. एंड प्लीज ट्रस्ट मी, दीज आर वेरी यूजफुल बट डेंजरस एप्स. I will repeat, these are useful but dangerous apps. किसी बंदे ने एंटी probably developer or non developer I don't know, but somebody had posted on Reddit कि ये एंटी ग्रेविटी को कुछ बनाना है, एडवांस सॉफ्टवेयर बनाने का ट्राई कर रहा था और उसको इतना डांटा उसने दैट यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म, प्लीज डू दिस, प्लीज डू दैट. नहीं समझ में आ रहा है तो डिलीट करके फिर से बनाओ. तो वही जो मैंने एग्जांपल दिया था ना ब्रेड और पीनट बटर सैंडविच का, वो समझा नहीं, उसने उसको पूरा डी ड्राइव वाइप आउट कर दिया था. उसका जो पूरा डेटा है, बिकॉज इट हैज ऑल द परमिशंस ऑफ योर सॉफ्टवेयर, ऑफ योर सिस्टम, तो वो ध्यान रखना जरूरी है. अभी वो देखिए वो आके टेस्टिंग कर रहा है. मैंने उसको बोला था ना ऐप लॉन्च करो, तो इट हैज टेकन माई कोड, अंडरस्टूड द एंटायर कोड एंड इट इज रनिंग ऑन माई लोकल होस्ट. मेरे सॉफ्टवेयर में वो रन कर रहा है, यहाँ पे मेरे सिस्टम में रन कर रहा है. आई डोंट नीड एन इंटरनेट नाउ. मैंने गूगल ऐप स्टूडियो पे ऐप बनाया एंड आई हैव टेकन इट डाउन इनटू माय सॉफ्टवेयर. एंटी ग्रेविटी को बोला कि भाई अब ये ऐप रन कर. नाउ लेट्स सी इवन विदाउट बैकएंड वेदर इट इज एबल टू टेक दिस और नॉट. आई बिलीव द टाइम इज ओवर. जस्ट गिव मी 5 minutes more. ये उसने टूल बनाया, यहाँ पे एक डैशबोर्ड बनाया एंड देन इट इज गिविंग मी व्हाट इज अ परफेक्ट मैच, मिसमैच वैल्यूज क्या हो रही है, कहाँ पे क्या इश्यूज है, डिफरेंसेस, जो एक आप प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर से एक्सपेक्ट करते हो वैसा लेवल का उसने सॉफ्टवेयर बनाया है. एंड आई रियली वांट टू शो व्हाट रेप्लिट वुड हैव बिल्ट. आई थिंक इट इज डन नाउ एंड इट इज रेडी. लेट्स ट्राई टू अपलोड दैट जेसॉन फाइल. बना देते हैं यार, ये तो अच्छा बना रहा है. और कभी गुस्से में आ गया तो डिलीट भी कर देगा ये. बेसिक किसी के कंप्यूटर में तेरे को बनाता तो फिर उसने लिखो प्लीज डिलीट ऑल द ट्राई. स्टिल नहीं समझ रहा है. लेट्स सी एन एक्सेल. ले लिया एक्सेल. यूज कर्सर. सर बिना कर्सर के भी मेरा था VS कोड में भी चल रहा था. बाय बाय. GSTR 2B ऑल्सो. हाँ अब देखेंगे तो प्रॉब्लम क्या है. यहाँ पे जाके अटके हैं, विच इज वेयर आई वाज सेइंग के फाइल ठीक से लेना है. डिलीट ऑल दिस. हाँ बिकॉज इट्स बीइंग बिल्ट लाइव, प्रॉब्लम तो रहेगा. और लेट्स डू एन ईजियर वे. कॉपी दैट.
Thank you for whoever noticed the file name that I have given. हाँ, अब उसको कुछ समझा. Now it is asking me the tolerance, मुझे कितने चाहिए, percentage 2% चलेगा. फजी मैच थ्रेशोल्ड, फजी मैच करके भी एक था जो शशांक का इंस्ट्रक्शन था. इट वाज आस्किंग फजी मैच. तो फजी मैच में क्या होता है, इफ आई एम सेइंग 90%, अगर मेरा इनवॉइस नंबर इज ऑफ 10 डिजिट्स, उसको 9 डिजिट सीक्वेंस में कहीं से आगे पीछे बीच में कहीं से भी अगर उसको मैच होते दिख रहे हैं तो वो उसको पकड़ लेगा. फजी मैच 90% तक इज ओके, बट फजी मैच इज समथिंग विच इज रियली डिफिकल्ट, क्योंकि जितना बड़ा डेटा होगा वो हर एक डेटा के सामने वो 90% का सबसे नियरेस्ट मैच ढूंढने जाएगा, एंड इट इज अ वेरी ट्रिकी स्टफ. सो फजी मैच इज समथिंग दैट शुड नॉर्मली बी अवॉइडेड. नहीं चल रहा है. तब तक आई वॉज शोइंग GST रिकॉन, और ये इसने कंप्लायंस का AI एडवाइजर खुद ही बना दिया है. क्यों? क्योंकि गूगल जेमिनी के पास मेरे कॉन्वर्सेशन का पुराना कॉन्टेक्स्ट है ना, उसको पता है मैं एक ऐप बना रहा था जहाँ पे कंप्लायंस, लिटिगेशन और एडवाइजरी तीनों होगी. तो उसने समझ लिया कि ये भी एक कंप्लायंस का कुछ ऐप बना रहा है, तो उसको AI तो चाहिए होगा, AI से बना रहा है. तो उसने AI ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के यहाँ पे कुछ बना दिया है. आई विल आस्क द सेम क्वेश्चन, कैन आई क्लेम ITC ऑन एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस? आई डाउट इट विल आंसर एनीथिंग, क्योंकि वो पूछेगा कि भाई जेमिनी का की नहीं है. यस, API की है नहीं, तो इतनी जल्दी चलेगा नहीं. ये बोल रहा है मैंने रिजॉल्व कर दिया है. नहीं हो रहा है भाई तुमसे. सो इट हैपेंस. Live app building in half an hour is not something that's always doable, but let's try one last time and then I'll close the session. Probably somewhere it has in its coding it has still mentioned that JSON, but ढूंढने कुछ और जा रहा है. No, which is okay. No, that is simplified. I think you really don't know how to build an app. I'm really frustrated with you. Please try to solve this immediately. सर वो डिलीट नहीं कर दे आपका ट्राई, फ्रस्ट्रेटेड हो. हाँ जी सर, ये ब्राउजर पे चल रहा है, उसके सर्वर पे. मैं इतनी गालियां एंटी ग्रेविटी को कभी नहीं दूंगा. यस सर. Let's just see this last time. Probably the mistake that I did was कि ये जो पूरा शशांक का जो prompt था, that was supposed to be built on entirely on Python and was supposed to run on Streamlit and stuff. तो वही जो prompt था वो उठा के करने से ज़्यादा बेसिक prompt देके शायद क्लॉड से डिस्कस करके अगर वो डाला होता तो शायद कंफ्यूजन नहीं होता. Probably what I feel is that is what is happening. So while he was doing that, वो अपना जब ऐप बना रहा था, I thought let me use his prompt only. Probably that is something that did not work. But yes, I think it is saying that the JSON I have robust JSON cleaning उसने हैंडल तो किया है. But as I am saying, जो फ्रंट एंड है वहाँ पे JSON फाइल लेनी चाहिए, वो वहाँ पे JSON ले नहीं रहा है, और पीछे जब प्रोसेस करना है तब वो प्रोसेस JSON को ढूंढ रहा है, इसलिए उसको JSON नहीं मिल रहा है. लेट मी ट्राई टू रन इट वन लास्ट टाइम. अदरवाइज एनीवेज एटलीस्ट 2 टूल तो ऐसे बने हैं जो चल रहे हैं. दैट इज हाउ आई ऑपरेट. सिंपल एक्सेल, टू भी सिंपल है. आपने मुझे भेजा है सर, पूरा मेरा व्हाट्सएप दिखेगा.
late Veerenshwar. Sample data. How did the agent do? अभी रेटिंग तो मैं देता हूँ तुमको. रेटिंग मांग रहा है साइड में. भाई पूरे साल का पीआर है. 1 महीने का होनर है उसने. Yes, sir. We'll close it. Anyways, thank you. Thank you, everyone.